my question is, why do we use a between clause? जब से हमें डेटा Okay. फिल्टर करना हो स्पेसिफिकली एक रेंज से कि बिटवीन 1 to Correct. 50 मतलब जो डेटा हमें वो रिक्वायर्ड है, देन वी यूज बिटवीन क्लॉज. Okay, very good. For example, let me show you my table. And I have a table select star from. And if I want to retrieve records of the customers whose customer ID is between 30 to 50. So how will I write the command? Select star from sales lt dot customer where customer ID between 30 and 50. Is that clear? So it will give me the records of the customers whose customer ID is between 30 and 50, including 30 and 50. Okay. So this is called as between clause. Why do we use a in clause? If we have to supply a list of values. For example, I want the details of the customers whose customer ID is 30, 40 and 50. 3 values. अगर एक सिंगल वैल्यू होती तो मैं इक्वल्स टू यूज कर सकता था, राइट? अब मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए जिनका कस्टमर आईडी है 30, 40 एंड 50. सो हाउ विल आई राइट दिस कमांड? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sales lt dot customer where customer ID in and the list of values in bracket. So 30, Sir, 40. why do we have clauses and constraint, and what is the difference between clauses and constraint? Okay, so let's see that. Constraints किस लिए होते हैं? What is the objective of constraints and clauses? So constraints का objective होता है to maintain the data integrity, right? To prevent unauthorized data entry, right? हम अपने कुछ constraint rules and regulations लगा रहे हैं कि इसी टाइप के डेटा हम एक्सेप्ट करें. मैंने आपको एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, if I ask you to fill a form, I'm talking about an online form, और मुझे आपका फोन नंबर चाहिए, और फोन नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? 10. But by mistake, if you enter 11 digits, will that information be useful to me? और अगर वो डेटा इंसर्ट हो गया तो क्या होगा? My database will become unreliable. My database will become not trustworthy. Nobody will trust my database. Nobody will use my database. कंपनी में मेरे डेटाबेस को कोई यूज ही नहीं करेगा. सो आई हैव टू अप्लाई ए रूल कि लोग 10 डिजिट से ज्यादा लोग इसमें नंबर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओके. सिमिलरली, इफ आई आस्क यू योर एम्प्लॉय आईडी, it has to follow certain format, right? So in order to, this is why we use constraints, to limit the type of the values which we can accept in a column. Is that clear? Yes, sir. And clauses, why do we use clauses? To enable us to search for some data. अगर मुझे कोई डेटा सर्च करना है तो डिफरेंट तरीके के क्लॉजेस मैं यूज कर सकता हूं in order to write my query. जैसे where clause है. where clause किस लिए यूज करते हैं हम? फिल्टरिंग करने के लिए, ठीक है. between clause है एक रेंज में सर्च करने के लिए. ये सब क्लॉजेज हैं. So ये clauses are mostly used in retrieval of the data. Correct, to retrieve the data. Okay. So and now constraints let's are mostly used for structure, to limit the values or limit the values.
by forcing some rules on a column or on a table. ठीक है, हम कुछ रूल्स फोर्स कर रहे हैं, उस रूल्स के बगैर उस रूल्स को ब्रीच करा जाएगा तो डेटा एक्सेप्ट नहीं. Okay, sir. Okay, so this is the in clause. So you can supply the list like this, and I got, so there is no one from 50, so 30 and 40 का data. Clear है in clause? Okay. Like clause. Why do we use a like clause? ये हमने पहले भी किया है. पैटर्न सर्च करने के लिए. वेरी गुड. और कौन कौन से हमारे इसमें वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं? Percentage and underscore. And underscore. Okay, so I'm not writing like clause now. Count. Count is not a clause. I would say count is a function. So there are some aggregate functions which we can use. What are aggregate functions? To do some calculation on a column. जैसे sum करना हुआ, right? Count करना हुआ values को, average निकालना हुआ, इन सब के लिए हम कोई aggregate function हमें use करना पड़ेगा. ठीक है? For example, let me show you. हमारा हम अपनी टेबल डेटाबेस यूज करते हैं डेमो. सबने अपने 2 टेबल्स बना ली होंगी और मेरे पास एक टेबल है select star from emp_cell. अब मुझे देखना है कि टोटल सैलरी में कितनी पे कर रहा हूं, क्योंकि दैट इज ए कॉस्ट टू माय कंपनी. तो टोटल सैलरी का मुझे सैलरी कॉलम का सम निकालना है. तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? तो हम सम. तो हमारा हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट सम. सम इज अ फंक्शन. किस कॉलम का सम करना है? सैलरी from table name. So it will give me the sum of the salary column. Is that clear? So sum is an aggregate function. इसी तरह हमारे पास count function होता है, right? अगर मैं मुझे count करना है कितने एम्प्लॉइज हैं इस टेबल के अंदर, तो I can do count और किसी कॉलम को पिक कर लेते हैं, लेट्स से EID. अब क्या करेगा? एम्प्लॉय आईडी का 8 है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर मेरे कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज हैं, क्या काउंट नल वैल्यूज को काउंट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस कैन बी ए क्वेश्चन. काउंट डज नॉट कैलकुलेट नल वैल्यूज. ओके. So count will not count the null value, right? What are the other aggregate function do we have? So we have average. What average will do? It will calculate the average of a column. So if I use average salary. So sir, count यहाँ पे distinct की तरह काम करता है? नहीं, count सिर्फ values count करता है, null values को count नहीं करता. ओके. डिस्टिंक्ट का भी फंक्शन होगा हमारे पास यहाँ पे? डिस्टिंक्ट का क्लॉज है, मैं बताता हूँ. अच्छा, ठीक है. सर एक चीज पूछनी थी, लाइक जो काउंट है वो डुप्लीकेट को भी काउंट करेगा? लाइक अगर EID 2 बार रिपीट हो रही है तो देन स्टिल विल कंसीडर. इसको काउंट करेगा. बिल्कुल सही बोला. डुप्लीकेट को भी काउंट करेगा. ओके. और सर इसमें मतलब न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक डजंट मैटर, वो काउंट करेगा. इट जस्ट दैट कि नॉट नल, मतलब जो नल वाली है उनको नहीं कंसीडर करेगा. बिल्कुल. इट डजंट मैटर वेदर दिस इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज और नंबर्स और डेसिमल्स, डजंट मैटर. इट विल जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज इन ए कॉलम. ओके. एवरेज क्या करेगा? एवरेज निकाल दे, किसी कॉलम का एवरेज निकाल देगा. और इसी तरह हमारा होता है 4th और 5th मैक्स एंड मिन. मैक्स क्या करता है? वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं, और मिन मिनिमम वैल्यू. डिस्टिंक्ट क्लॉज. डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करेगा? आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं काउंट करेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इन माय कस्टमर टेबल, so customers may have the same first name. Am I correct? So people may have first name as same, right? So but if I use count on the first name, so I was saying that if I count my first name, select
first name from sales LT dot customer, और इसका मैं काउंट करता हूं। तो कितनी वैल्यूज आएंगी, जितनी मेरी इसके अंदर वैल्यू 847, ठीक है। बट if I use the distinct clause, select distinct first name, how many values are there? It means that there are customers who have the same first name. Lot of customers are there who have the same first name. Is that clear? So distinct क्या करता है, यूनिक वैल्यूज काउंट करके देगा, ठीक है। और अगर इसको काउंट करना है कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है तो हम काउंट फंक्शन तो यहाँ पे यूज करते हैं। बट दीज आर यूनिक वैल्यूज, यूनिक फर्स्ट क्या यूनिक वैल्यूज। ओके, ऑर्डर बाय क्लॉज किस लिए यूज होता है, अगर मुझे अपने डेटा को सॉर्ट करना है, राइट, इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर, सो आई विल यूज द क्लॉज कॉल्ड एज ऑर्डर बाय। ओके, सो लेट्स सी, अपना डेटा यूज करते हैं डेमो वाला, और मेरे पास सैलरी वाला डेटा था, राइट। इफ आई वांट टू अरेंज दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, राइट, कि जिसकी सैलरी ज्यादा है ऊपर आ जाए और जिसकी सैलरी कम है वो नीचे आ जाए, तो कैसे लिखेंगे कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP अंडरस्कोर सेल एंड देन यू विल यूज द क्लॉज ऑर्डर बाय। किसके बेस पे ऑर्डर करना है, उस कॉलम का नाम, मुझे ऑर्डर करना है सैलरी के बेस, तो सैलरी। बाय डिफॉल्ट इट विल सॉर्ट द डेटा इन द फॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉर्ट करते हैं, सबसे ऊपर जिसकी सबसे कम सैलरी है उसका डेटा। सो नाउ दिस टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टेड इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग, और अगर डिसेंडिंग करना है तो आई हैव टू राइट डिसेंडिंग लाइक दिस, DESC, DESC मींस डिसेंडिंग। ओके, you have the descending on the top. Is that clear? So highest salary का जिसका डेटा है सबसे ऊपर है, lowest वाला नहीं। So why do we use order clause? To sort the data. Okay. और order clause where clause के बाद आता है, where condition यूज करने के सबसे लास्ट में। So order by हमेशा सबसे लास्ट में होता है आपकी क्वेरी। Group by, very important clause called as group by। और ग्रुप बाय मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं क्योंकि आप जहां पे भी डेटा एनालिटिक्स करेंगे, किसी भी टूल को यूज करेंगे, हर जगह ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो आप हर टूल पे इसको यूज कर सकते हैं, इट कैन गिव यू लॉट ऑफ पावर, राइट, लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब ग्रुप बाय क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू सी, लेट मी ओपन सम डेटा, तो थोड़ा बड़ा टेबल निकालता हूं। Select star from, थोड़ी बड़ी टेबल देख, डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल देखते हैं। ओके, कैन यू सी दिस, अभी डेटा कैसे अरेंज है, सेल्स ऑर्डर ID 71774, 71774, once again 776, और देखो 71880 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 71780 मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो सेल्स ऑर्डर आईडी और बगल में हमारा ये है लाइन टोटल, यानी कि टोटल रेवेन्यू, एक सेल्स बोल सकते हैं। व्हाट इज दिस डेटा, ये डेटा किस टाइप से अरेंज किया गया है, दिस डेटा हैज बीन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्स ऑर्डर आईडी। एवरी रो रिप्रेजेंट्स वन सेल्स ऑर्डर आईडी और डिटेल्स ऑफ सेल्स ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो हर रो एक सेल्स ऑर्डर आईडी का डिटेल्स। अब मल्टीपल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, तो दैट इज व्हाई यू सी द रेपिटेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई आस्क यू प्लीज टेल मी
व्हाट इज द लाइन टोटल, और इसको ले लेते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ईच सेल्स ऑर्डर आईडी। हर सेल्स ऑर्डर आईडी का मुझे टोटल क्वांटिटी निकालना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं 71774 का टोटल क्वांटिटी कितना है, 1 + 1 2, तो 77184 के सामने 2 आ जाए। तो आई वांट टू सी सेल्स ऑर्डर आईडी एक कॉलम में और बगल में टोटल क्वांटिटी। ये मैं ऐसे आउटपुट चाहता हूं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, यू विल हेल्प मी, बताओ कैसे लिखें। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेरी। रिट्रीव। सर ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें सेल्स ऑर्डर आईडी में रिडंडेंसी हट जाएगी ना, मतलब जैसे इसने 71774 में दो क्वांटिटी बेची है तो वहां पे 2 आ जाएगा, है ना, मतलब यही है। हाँ, वहां पे 2 आ जाना चाहिए, करेक्ट। और 71780 ने मल्टीपल आइटम्स बेचा है तो जो भी इसका टोटल रहेगा वो वहां पे आ जाएगा, करेक्ट। और 7174 जैसे मल्टीपल टाइम्स है, ये एक ही बार आएगा, ये एक ही बार आएगा, राइट। और सिमिलरली 71780 भी एक ही बार आएगा, लेकिन उसके सामने उसकी क्वांटिटी टोटल आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ये मैं चाहता हूँ, राइट। तो क्वेश्चन इज रिट्रीव सेल्स ऑर्डर आईडी एंड टोटल क्वांटिटी। अब इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, सबसे मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर आईडी, कॉमा, और मुझे क्या करना है, क्वांटिटी को सम करना है, तो सम, और कॉलम का नाम है ऑर्डर क्वांटिटी। फ्रॉम टेबल नेम इज सेल्स ऑर्डर, ये है ना, सेट ऑर्डर डिटेल है, सॉरी डिटेल, ठीक है। लॉजिक तो ऐसे ही बोलता है, ऐसे लिखना चाहिए, पर क्या इससे आंसर आएगा? सर ग्रुप बाय तो किया ही नहीं। हाँ, पहले अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या होगा, क्वेरी तो मेरी यही करी थी, सेल्स ऑर्डर के सामने टोटल क्वांटिटी, एग्जीक्यूट करता हूं तो एरर। ये एरर क्यों आया है, इसको पढ़ते हैं, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस एरर बिफोर आई राइट द करेक्ट क्वेरी। इट सेज is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or group by clause। तो इसका मतलब क्यों एरर आ रहा है, मेरा सेल्स ऑर्डर आईडी क्या है, एक इंडिविजुअल वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या कर रही है, एग्रीगेट। तो मैं एग्रीगेट को नॉन एग्रीगेट वैल्यू के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? अगर मैं सिंपली ऑर्डर क्वांटिटी लिख देता तो आंसर आ जाता, क्वांटिटी सेल्स ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी, राइट। लेकिन ये क्या है, ये एग्रीगेट है, सम मैंने यूज किया है, और ये क्या है, ये नॉन एग्रीगेट है। तो आई एम ट्राइंग टू कंबाइन एग्रीगेट विद नॉन एग्रीगेट वैल्यूज, व्हिच इज नॉट करेक्ट। अगर हम सम यहाँ पे भी सेल्स ऑर्डर आईडी में भी यूज कर दें, लेकिन फिर वो सम उसका आ जाएगा ना, जैसे 71780 के मल्टीपल है तो वो टोटल सम कर देगा, उसका सम कर देगा, पर सम हमें तो सम नहीं चाहिए, हमें तो ऑर्डर आईडी चाहिए ना, उनके बगल में उनका टोटल क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो आई विल यूज द क्लॉज कॉल्ड एज ग्रुप बाय। इस डेटा को ग्रुप करो, किसके बेसिस पे, सेल्स ऑर्डर, ठीक है। आंसर आ गया। तो सेल्स ऑर्डर आईडी के सामने यहाँ पे क्वांटिटी 2 आ गई 774, और हर सेल्स ऑर्डर आईडी के सामने उसकी टोटल क्वांटिटी। हम इस एलियस दे देते हैं इसको एज टोटल अंडरस्कोर QTY। इज दैट क्लियर? ग्रुप बाय क्लियर है सबको? अब ये हमने किसके बेसिस पे ग्रुप बाय किया है, सेल्स ऑर्डर आईडी के बेसिस।
सर ये टोटल क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी ऐड करके क्या हुआ डिफरेंस? ये क्या है, ये एलियस ऐड, ये एलियस है। अभी देखो अगर मैं ये इसको हेडर नहीं यूज, चेंज हुआ। हाँ हेडर चेंज हो गया, यहाँ पे टोटल पहले ब्लैंक आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, आप अपने सर कॉलम एक को, क्वेश्चन ये था, जैसे अगर हम मल्टीपल फंक्शंस लगा रहे हैं, अब जैसे इसमें सम भी लगाया, एज भी लगाया, फ्रॉम भी लगाया, ग्रुप बाय भी लगाया, सिलेक्ट भी लगाया, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे क्या चीज हमें, मतलब किस ऑर्डर में कौन से फंक्शन को रखना है? ओके देखो, ग्रुप बाय क्या होता है, सबसे पहले टेबल जो होगी उसके बाद लगेगा ग्रुप बाय फंक्शन। ठीक है, और इसीलिए जब आप देखोगे मेरी स्लाइड पे मैंने सीक्वेंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ऑर्डर बाय क्लॉज सबसे लास्ट में। ठीक है, जो कॉलम चाहिए वो फ्रॉम से पहले, जो कॉलम मुझे देखने हैं। इज दैट क्लियर? सेलेक्ट के बाद क्या लिखोगे, कॉलम के नाम जो मुझे देखने हैं। ऑर्डर कब करते हैं, जब आपका आंसर आ गया उसके बाद ऑर्डर करते हो ना, तो ऑर्डर बाय सबसे लास्ट। सिमिलरली सब कुछ मैंने कर लिया, लास्ट में जाके मैं ग्रुप बाय करूंगा। तो ये सीक्वेंस हमें इस टाइप से फॉलो करते सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे हैं। आपने वो किया ना ग्रुप बाय की जगह, अगर मैं यहाँ लिखती सिलेक्ट सम ऑर्डर क्वांटिटी और वेयर में कंडीशन डाल देती, तब रिजल्ट सही नहीं आता वो। वेयर क्लॉज से क्या करना चाहते हो आप? वेयर मतलब वेयर सेल्स क्लॉज किस ऑर्डर लिए यूज आईडी। होता है? वेयर क्लॉज तो यूज होता है फिल्टरिंग करने के लिए, हाँ है ना? हाँ तो जी। यहाँ पे हम फिल्टरिंग नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्लियर है? पर सर उसमें भी अगर हम लिखते हैं कि वेयर सेल्स ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू जो भी हमें चाहिए 7174 लिख देते, तो वो सम हाँ करके तो तो हमें दे ही देता ना। हाँ, लेकिन पर वो 774 का देता है ना, मुझे तो सारे सेल्स ऑर्डर आईडी को ग्रुप करना है, किसी पर्टिकुलर को नहीं करना। ओके, तो सर अगर अगर इन एक करके दे दो तब भी मतलब लिस्ट होगी हम्म ना। अगर इन करके देते तब भी वो रिजल्ट तो दे ही देता उसके सामने की तो नहीं। इन करके कितने कितने दे दोगे? सेल्स ऑर्डर आईडी तो बहुत सारे हैं, मे बी दे आर 1500, राइट? राइट। ओके, इज दैट क्लियर ग्रुपिंग? क्योंकि दिस, ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन and now this time you will tell me. So let me open some other data set. एक नया डेटा सेट देखते हैं, sales LT dot okay, let's look at this data. सेल्स ऑर्डर आईडी है और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर नंबर, परचेज नंबर, अकाउंट नंबर, शिप टू एड्रेस, शिप मेथड। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो कॉलम है, एक तो है टोटल ड्यू और एक है शिप मेथड। शिप मेथड क्या होता है, किस वे से हमने उसको शिप किया है, कार्गो से किया है, वो सब है। तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है टोटल ड्यू विद रिस्पेक्ट टू द शिप मेथड। समझ में आया क्वेश्चन? और चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, बट मच बेटर क्वेश्चन। कस्टमर आईडी देख रहे हैं आप, राइट? अब कस्टमर आईडी के साथ मुझे देखना है कि हर कस्टमर पे मेरा कितना टोटल ड्यू है, और दोनों कॉलम है मेरे इस टेबल, ये कस्टमर आईडी है और ये टोटल। अब मुझे देखना है हर कस्टमर के पास मेरा कितना अमाउंट ड्यू है। सर इसमें कस्टमर आईडी को ग्रुप बाय ही तो करेंगे। अभी देखते हैं, अभी ग्रुप बाय क्यों करेंगे, लेट्स सी दैट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम सेल्स एलटी डॉट सेल्स ऑर्डर हेडर। ठीक है जी, और सबसे पहले मैं डिस्टिंक्ट हटा देता हूं और सिर्फ कस्टमर आईडी देखता हूं। कितने कस्टमर आईडी हैं? ओके, तो इसमें एक बार देखते हैं डिस्टिंक्ट है या नहीं है। डिस्टिंक्ट भी 32, सारे डिफरेंट हैं। ओके, सो इसलिए हम शिप मेथड का देखते हैं। डिस्टिंक्ट शिप मेथड,
32 है शेप मेथड और डिस्टिंक्ट देखते हैं। एक ही है तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, तो इसलिए ग्रुपिंग के लिए हमें कुछ दूसरा डेटा देखना पड़ेगा। सो लेट मी सी सम एल्स। ओके, सेल्स ऑर्डर हेडर को ले लेते हैं। बिल टू एड्रेस इसमें नहीं है, डिटेल को ले लेते हैं। और अपना हम डेमो लेते हैं। ओके, अब मुझे देखना है नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बाय सिटी। थोड़ा छोटा डेटा है, सिटी कॉलम है, मुझे देखना है कि सिटी के हर सिटी के कितने एम्प्लॉय। इसको कैसे करेंगे? हाउ विल यू राइट? सेलेक्ट, बताओ क्या कमांड लिखनी है। आई वांट टू सी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बाय सिटी, यानी न्यू दिल्ली के कितने एम्प्लॉइज हैं, लंदन के कितने हैं। तो हाउ विल यू राइट दिस कमांड? एनीवन? सबसे पहले जो चाहिए सेलेक्ट सिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे? काउंट ऑफ सिटी या फिर सम करेंगे, काउंट करेंगे? काउंट। सम नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। सो काउंट, EID को काउंट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम EMP। अब क्या ये चलेगा कमांड? क्योंकि एक है एग्रीगेटेड और एक है नॉन एग्रीगेटेड, आप दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। तो आई विल राइट, किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करना है? सिटी। न्यू दिल्ली 4, लंदन 1, न्यूयॉर्क, इस स्टेप से आपका आंसर समझ में आ रहा है। कौन सा एक्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी यूज ग्रुप, कब हमें ग्रुप बाय यूज करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसलिए तो ग्रुप बाय लगे। सर इसके डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स मिल सकते हैं? बहुत क्वेश्चन दूंगा आपको, बिल्कुल क्वेश्चन, अभी असाइनमेंट मिलेगा पूरा आपको, डोंट वरी, ठीक है। एंड देयर यू हैव टू यूज द ग्रुप बाय। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक और क्लॉज होता है हैविंग क्लॉज। अब हैविंग क्लॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। मैंने यहाँ पे किया था मैंने ग्रुपिंग करी है सेल्स ऑर्डर आईडी के बेस पे टोटल क्वांटिटी, पर क्या ये डेटा सॉर्टेड है? इज इट सॉर्टेड? सबसे पहले क्वांटिटी कहाँ पे आ रही है? 2 वाली की आ रही है, फिर 1 आ रहा है, फिर 76, फिर 140, तो इट्स नॉट सॉर्टेड। तो नॉट बेटर वे टू प्रेजेंट। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो इस क्वेरी को मैं सॉर्ट करने के लिए क्या बताया था? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, सॉरी, ऑर्डर बाय किसके बेस पे ऑर्डर करना है? पहले कॉलम का नाम जिसके बेस पे आपको सॉर्ट करना है इस डेटा को, टोटल क्वांटिटी के बेस पे सॉर्ट करना है, और किस बेस पे करना है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं एंड माय डेटा इज सॉर्टेड। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस सेल्स ऑर्डर आईडी में सॉल्व हुई है? 7178। इस तरह से आप अपने ग्रुपिंग करने के बाद डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको और क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। आई वांट द डेटा ऑफ ऑल द सेल्स ऑर्डर आईडी whose total quantity is more than 100, राइट? तो ये अभी तो सारा दिख रहा है, मुझे सिर्फ चाहिए उन्हीं का डेटा जो जिनकी टोटल क्वांटिटी 100 से ऊपर। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? तो आप क्या होगा? वेयर क्लॉज लगा करके ग्रेटर देन।
where total quantity greater than वेयर क्लॉज के बाद or total quantity greater than 100. देखो टोटल क्वांटिटी तो नहीं है क्योंकि हमें सम यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑर्डर Total quantity greater than. ग्रेटर देन 100 और अभी ऑर्डर बाय को हटा दें। अब ये कॉल चलेगा, ये क्लॉज इस टाइप से क्वेरी चलेगी। इनकरेक्ट सिंटैक्स वेयर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर रहे हो और उसके बाद आपको फिल्टरिंग करनी है, यू विल यूज हैविंग क्लॉज। तो ग्रुप बाय एंड हैविंग गोज टुगेदर, ठीक है। अगर ग्रुप बाय नहीं है तो फिल्टरिंग कैसे कर रहे थे, वेयर क्लॉज से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्रुप बाय आ गया और आपको उस पर फर्दर फिल्टरिंग करनी है, तो वेयर की जगह कौन सा क्लॉज चलेगा, हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है रूल्स कि जब अगर ग्रुप बाय है तो आपको वेयर नहीं आ रहा। तो अब आप क्या करोगे, इसकी जगह सर यू मीन हैविंग यूज होगा एज वेयर, Yes, लेकिन बिल्कुल। जब ग्रुप बाय यूज रहेगा किया जाएगा तो ही हम हैविंग यूज करेंगे, अदरवाइज हम केवल वेयर यूज करेंगे। Absolutely correct. Absolutely. So having will always be used along with group by. ओके Okay. अब इसको हम एग्जीक्यूट फॉर करते हैं। फिल्टरिंग पर्पस। क्लियर है, फिल्टरिंग हो गया। अब सारा सिर्फ मुझे वही और सेल्स ऑर्डर आईडी दिखा रहा है जिसकी टोटल क्वांटिटी 100 से ऊपर। इज दैट क्लियर? किसमें? हाँ, आईएन तो वेयर के साथ यूज होता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर फिल्टरिंग करनी है जहां पे ग्रुप बाय यूज हुआ है तो वहां पे वेयर क्लॉज नहीं यूज करते, वहां पे उसकी जगह एक और क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं हैविंग, और हैविंग सिर्फ ग्रुप बाय के साथ यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता, ठीक है। ये थोड़े छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। और अब आपको इसको सॉर्ट करना है। ये सॉर्टेड नहीं है, पहले 140 वाला है, फिर 286, फिर 267। तो इसको सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी डिसेंट। अब ये मच बेटर तरीके से आपके सामने डेटा है, ठीक है, सॉर्टेड। इज दैट क्लियर? और ऑर्डर बाय मैंने बताया था सबसे लास्ट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हैविंग क्लॉज, राइट, जो कि हमेशा ग्रुप बाय के साथ। एंड हियर इज योर असाइनमेंट।